Hello. Oh, good. So, Assalamu alaikum to all of you. Hope everyone is fine. Class nahi start hui. Yes, it's already started, but let me clear. My voice is really visible, audible to you people. Hello. So this was the few slides left from the previous lecture because last time because of the holidays I was not able to finish this lecture. So we will finish this first and then we will start the new one. So now my voice is clear. Okay, thanks. So we will start from the delivering effective lectures. So let us start from the, the background. I told you already the concept about the delivering effective lectures. So as I told you in the previous lecture, the objective of this topic. Did you remember or till forget? Forget all? Show me your response. Did you read this lecture, my dear students? Answer me. Okay, give me your numbers or make a group account. So I will share my lecture to you people. Okay? Make your group. So let us start from the beginning of this lecture. Let me review about these lectures. So our topic was delivering effective lectures. First of all, I would like to tell you about the objective which we covered in the last class. So in our last lecture, introductions, lecture method, characteristics of the lecture method, characteristics of the effective and ineffective lecture method. We already discussed when to lecture, when not to lectures. Lecture is appropriate when, and lecture is appropriate not when. So planning, so we will learn about the method, learning interactive lecture, purpose of the lecture, logistic lectures, effective group size on the question technique, lecture component, tip of creating an effective introductions, and lecture note. Presenting interactive lecture, questioning technique, presentation technique to reduce presentation anxiety, evaluating lectures, follow this 3-step process to conduct a self-evaluation, summary, and references. So these were all our objectives. We will finish few and we will start from where we left. As you know, I discussed with you the concept of the lecture method. What was the oldest method? Even the physicians and academic teachers is not aware about proper how to deliver the effective lectures. So we always know what is the effective way to deliver the lectures. So lecture method is the method of teaching in which the teacher delivers the content by the verbal communication in front of the students, and the students listen carefully to the teachers, and the teacher transmit informations, knowledge, fact, and data by talking to the students.
The student takes notes, clarify doubt, and listen to talk of the teachers. So all these are the method of the traditional methods. So lecture can be defined a method of teaching in which the teacher delivers or present pre-planned topic of interest through the verbal communications or by talking to the student in order to achieve pre-specified teaching learning objectives. So this was another definitions in which the teacher need to pre-plan the topic of the interest and through the verbal communications and by talking to the students to achieve the pre-specified teaching learning objectives. So we discussed in detail the pros and cons of the lecture method. What is the pros and what is the cons? Till remember or forget all? Did you remember this? Okay, very good. So we discussed already the pros of the lecture method. It helped in maintaining motivations and interest of both teacher and student in the classrooms. The benefit of yes, advantage and disadvantage. Pros, we can call them pros and cons of lecture method. So it help in maintaining motivations and interest of both the teachers and the student in the classroom. The teacher can be motivated by positive response from the student on questioning, and the student can be kept motivated through the use of humors, non-verbal communications, gestures, and postures. Present factual material in direct, logical manner, stimulate thinking to open discussions, and useful method of teaching large group of the students. So this way, this is very useful method to teach in the large group. Student role in the lecture method is a passive learner that result in passive learning, which cannot be considered an effective learning strategy. The lecture method requires excellent communication skills in which all the teacher may not be perfect because it depends on the teacher's own skills and intellectual ability to deliver the effective lectures. So through our cognitive ability, teacher must know audience. He must be proficient in English communications. In communication, whatever is used in the communications must be clear. Scope of participation of the learner is limited. This is the con of lectures. Main disadvantage of the lecture method. Sometime a lecture become one-sided show communication in one way, which is of no use to the students. Sometimes it's so one-sided show. Mean teacher is always active and student here are the passive learner. So the teacher role is only just share the information. Student just sit and take the note and just accept the whatever he is sharing the information by the teachers. They can accept. If the size of the class bigger than the teacher, lose control over the. Okay, Maha here. Good, you are here. If the size of the class is bigger, then the teacher loses control over the class. That may be jeopardize the teaching learning environment. That cause the bad effect on the teaching learning environment. It may not be suitable for some teaching learning situations. For example, teaching oropharyngeal suctioning skills to the students. Sometime, all the time, as I told you, people, all the time we are teaching a lecture method is not applicable in everywhere. Sometimes we need to discussion, sometimes we need to demonstration, sometimes we need to role play. So it depends where to lecture and where not to lectures. It depends on the situations. So student may get bored or become the inattentive if the teacher is voice monotonous, mean not visible, not clear, not the accent is not clear. That call the student easily can get bored and having no interest, or if he or she is unable to create interest and motivations among students and does not ask questions in between the lectures.
So this is the instructions from the management. Please kindly follow. Submit your fees as much as possible. Okay, so please, otherwise your classes will not, you will not able to get your classes. So submit your fees. Student may get bored and become the inattentive if the teacher voice is monotonous, or if he or she is unable to create interest and motivations among student and does not ask question in between the lectures. So if teacher does not know how to create an interest among the students, because being a teacher we must ask the 5 minutes to teach, and then you get the feedback from the student whether they are understanding or are they on the point or getting the point, getting your point of view. So it must be mean discussions or asking question to the students. It is difficult to gauge the learning while using lecture as a teaching method. So prepare the lecture in advance, select supplementary strategy to make lecture interesting and stimulating, aviates, blackboard, demonstration, PowerPoint slides, acquire mastery over the selected content and practice the lecture beforehand. So these are the guidelines. Keep in mind the level of understanding of the students, interest of the students, and the importance of the topic while preparing the outline of the lectures. Introduce the lecture in interesting way by asking question or by telling a story, relevant story or topic, or by giving a problem scenario to the student. It will keep the student alert and will develop interest in the topic. So these are the strategy will help you to engage your student in your learning, so they can be very enthusiastic and motivated and get interested in your teaching, because if you will having a this guideline and if you will follow these guidelines. Dress in a pleasant and soothing way as it appeals to students. Your dressing must be very, very pleasant. That should be appealable, mean that should be present. That you look like a teacher, not your hair is not properly combed. You are just standing in front of the student. Student will get easily bored. The teacher should always be dressed very pleasant. The teacher should never turn their back to the students even while writing on the blackboard, showing chart or any other media. Use effective communication skills, verbal and non-verbal. A good use of humor is necessary. Keep the student interested. Encourage the student to participate actively by encouraging them to ask questions and clarify doubts. Voice should be modulated as per the requirement of the particular content area. So maintain eye contact with the student. It helps to maintain the discipline in the classroom and keeps the student alert. Be on track by not wasting time or irrelevant fact, unnecessary detail explanations. So during your lecture, you must be on the track. Do not discuss the irrelevant things and unnecessary detail. Plan to explain difficult portions of the lecture by quoting suitable examples. If you see that this area is a difficult, then you can give you can share your own experience, sharing by examples, and giving them the sharing, asking the questions, so the student can easily understand. Plan to ask questions at frequent interval to create and sustain interest. The teacher need not to be much sensitive to whispered conversation and restlessness showed by the student. They should not be taken as pointer to change the strategy of presentations. So, guideline to improve the lecture method. Study conducted in Meheller essay et al. 2011 on the technique of teaching electrocardiography interpretation reported that the lecture method resulted in better learning as compared to self-directed learning. So when they have a research study on the electrocardiogram interpretations, according to this report, it was the mention, because that they put the result, and the result find it in the result that the better learning as compared to self-directed learning lecture method is much better. So in other way, study by Beers, GW 2005, it was reported that the lecture method was comparable to the problem-based learning to teach diabetes to nursing students. बार बार कट रही है क्या?
आवाज ठीक नहीं आ रही, वाई? मिस्टर फैसल, मिस्टर फैसल, सॉरी टू डिस्टर्ब। ये फैन का बटन देखो क्या किधर है, इसको बंद कर देना, वॉइस में थोड़ा मसला आ। बस एक ही बंद देख रहे हैं। नो वॉइस इज क्लियर? Okay, show me your response. Now my voice is clear. So I shared with you people one of the research study that is conducted by the Maheller Assay et al. In 2011 on the technique of teaching of electrocardiography interpretations reported that the lecture method resulted in better learning as compared to self-directed learning. In another study by the Beers GW 2005, yes ma'am Clara, okay fine. So, in another study by Beard GW 2005, it was reported that the lecture method was comparable to problem based learning to teach diabetes to the nursing student. So, we learn about good lecture must take care of time available, the audience, subject matter, postures, appears, manner, gesture, voice vocabulary, use of audiovisual aid, and blackboard. So your voice is should be very clear. Your accent should be clear. Your voice should not be. So time is very important. Please be on the class. Be on time. Subject must be clear, and content must be clear. Positions will be very clear to the students. Appearance, manner, voice, and gestures. So organizing the lectures. So there is a body of lectures that first of all I would like to share with you. You must have a clear introductions about the aim of your lecture. Then introductions, body, example discussion, demonstration, illustrations, question and conclusions. This is the as in showing in my slides. You can see these structures. So how you can evaluate a lectures? Speaker content experts, language used, degree of transparencies of presentations, use of audiovisual aid, attention and intellectual participations of people. Mean how much the student are participating and using intellectual ability during the lecture and responding to the shared concept. Advantage, it's a quite economically methods because it is possible to handle the large number of students at the time no laboratory equipment aids material are required. So this is very economically cheap, and you can teach to the large audience. Use the method, the knowledge can be imparted to the student quickly, prescribed syllabus can be covered into the short times. So it is a quite attractive and easy to follow, and also by this method teacher can develop his own style of teaching and expositions. It simplifies the task of teacher as she dominate the lessons for the 70 to 85% of the lesson time, and student just listen to him. Yes, my dear, I accept your present. Some good lectures delivered by the teachers may motivate, instigate, and inspire student for creative thinking. So your lecture, your communications must be very impressive to the student. So student always inspired to create the new thinkings from your thinking. Disadvantage. In this method, the student participate is negligible and students become the passive recipient of the information. So, of course, if the teacher is always talking, so there is a less participation from the students. So the student can easily getting bored and they can neglect the things which we are going to teach in the classroom. So in this method, we are never sure if the students are concentrating and understanding the subject matter being taught to them by teachers.
In this method, knowledge is imparted so rapidly that weak students develop a hatred for learning. So in this way में अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो easily he will get hated from the learning. उसको learning से नफरत हो जाएगी और वो learning को करना पसंद because he is not understanding the properly concept. In this method there is no place of learning by doing. इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई लर्निंग सीखने से लर्निंग नहीं है, ओनली लेक्चर है, टीचर ही बताया जा रहा है, लेकिन आप कुछ करके सीख नहीं रहे हो. एंड दस टीचिंग बाय दिस मेथड स्ट्राइक एट एवरी रूट ऑफ साइंस. आपने ये देखा कि साइंस में आप ये ज़्यादातर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो चीज़ें करके सीखते हैं, इट इज़ मोस्टली यूज इन द साइंस सब्जेक्ट और साइंस लर्निंग, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं. इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट and it does not take cater to individual needs and differences of students. In case of physics, it is against spirit of the development of scientific attitude of physics is basically an experiment science. आप देखा जाए तो लेक्चर मेथड अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स में ये टोटली इसकी ये अगेंस्ट है स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड. इसमें आपको चीज़ें करके सीखने की ज़रूरत होती है. It is an undemocratic and authoritarian method as the student cannot challenge or question to verdict of the teachers. आपने ये देखा कि ये it is like in the picture it shows that the teacher is showing the violent behavior, that whatever is teacher is telling the story that is you need to accept as a truth. So it is the totally undemocratic or authoritarian mean what authoritarian का मतलब है all the information or communication shared by the teacher is you need to accept or you have a no room for sharing and participation in the class. So this method is called undemocratic and authoritarian method. It does not provide a correct feedback and remedial help to slow learners. इसमें हमने देखे इसको कोई फीडबैक भी नहीं है बिकॉज आप किसी जो स्लो लर्नर्स हैं आप उनकी प्रॉपर फीडबैक नहीं ले सकते हो. इट डज नॉट हेल्प टू inculcate scientific attitude and training in scientific method among the people. Conclusion: this method is suitable for teaching in a higher classes where we aim to cover the prescribed syllabus quickly. मोस्टली हम देखते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में ये वाइडली यूज़ किया जाता है लेक्चर मेथड, क्योंकि इसमें जो है हाई क्लासेस होती हैं वेयर वी एम टू कवर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस क्विकली. जिस यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और हमने क्विक उस सिलेबस को कवर करना है वेयर वी नीड टू टेक द लेक्चर्स. सो द लार्ज कंटेंट एंड लार्ज ऑडियंस एंड कैन सेव द टाइम. दिस इज़ द ओनली benefit of this lecture method. Also, this method will help them to prepare themselves for college where lecture method of teaching is dominant method of imparting instructions. So आपने ये देखा है कि ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, ये ज़्यादातर मेडिकल एजुकेशंस में यूज़ होता है. या बड़ी क्लासेस में आपने देखा है कि वहाँ पे ये लेक्चर मेथड को यूज़ किया जाता है. This method teaching can made more beneficial if the teacher encourages his students to take note during the lessons. ये इस लेक्चर मेथड को कहते हैं कि इसका थोड़ा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि जब टीचर स्टूडेंट्स को ये इनकरेज करे कि ड्यूरिंग क्लास के वो अपने लेक्चर नोट बनाना खुद से लिखना शुरू करे. जब बोलते हो वो अपनी एक कॉपी पे राइट ऑन करे, देन इट मे बी इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड. After the lesson, teacher can give his students some time for asking question and answer their queries without any hesitations. आप lessons के बाद कुछ time दें students को ताकि क्या करें, student questions और answer कर सकें ताकि उनकी जो भी queries हैं without hesitation you can clear them. So characteristics, here we have some characteristics of the lectures. Lecturing in the medical and health education often have a poor reputation, as I told earlier, because even the academic consultant is not aware how to deliver the effective lecture. According to the Adelic, 1993 argue that the lecture format for the large classes is outdated and ineffective. So McIntosh, 1996, observed that the lecture is frequently a one-way process unaccompanied by the discussion, questioning, or immediate practice, which
make it a poor teaching methods. Because in the academic, if as I told you in the so many places that where we have a. So why do we lectures? Most educators learn how to teach based on their experience as the students. This teach as I taught approach tend to perpetuate the lecture as a passive one-way method of transforming information. इसमें हमने देखा गया है कि मोस्टली एजुकेटर क्या करते हैं, जैसे उन्होंने खुद से स्टूडेंट लाइफ में सीखा होता है वो कोशिश करते हैं कि ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करके मैं भी ऐसे ही टीच करूं. लेकिन ये जो इसकी जो रेप्यूटेशन आपने देखा है कि दैट इज ओनली अ पैसिव or mean to say कि one way method of transforming information. The lack of faculty training in presenting effective lecture rather than the method is itself. इसमें ये हो सकता है कि आपकी जो टीचर फैकल्टी है उसकी ट्रेनिंग में कोई लैकिंग हो सकती है presenting effective lectures rather than the lecture method itself. Lecture method कोई बुरी चीज नहीं है, lecture method is a good, but it depend on the faculty training about the delivering effective lectures. By the greatest weakness of the lecture, this can be greatest weakness because of the teacher faculty जो training है that may be affect the lecture method. So Price and Mitchell also cite evidence that interactive learning is enhanced through the effective use of key teaching skills including questioning, demonstrating, provide positive reinforcement and reviewing. So if you want to make your lecture interactive, you need to you allow the student to have a question, demonstrating, provide positive reinforcement by if the student shared, provide them the positive reinforcement by the verbal or by the prize. You can give the prize through showing the positive reinforcement, and negative reinforcement does not. You can discourage the student. I mean, you need to say it in the way that the student must be motivated, and next time if he will share his own point of view, so he will know how to properly answer. So here are the some I listed, make the two column of the characteristics of effective lecture or characteristics of the ineffective lecture. First of all, I would like to share in front of you people the educator interactions. Ineffective lectures, teacher and student both have an interactions, but in the characteristic of ineffective lecture, 100% educator talks with the limited or no interactions. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी टीचर की और स्टूडेंट का इंटरेक्शन 100% एजुकेटर टॉक है, लेकिन इसमें कोई भी इंटरेक्शंस नहीं है. टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर इनफेक्टिव में क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है. एजुकेटर स्टूडेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों के दरमियान में हो रहे हैं. इफ एनी क्वेश्चन एजुकेटर और स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट और एजुकेटर चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. आपने देखा इनफेक्टिव मेथड में शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्टिव लर्निंग. Share responsibility for active learning. Students depend on the educator for all the information. Small group problem solving activities, no student activities. Variety of supporting media and no supporting media. Limiting note taking required. Student have copies of the lecture notes. So here extensive note taking required. So when to lectures? Lecture is appropriate when and lecture is not appropriate when. लेक्चर कब अप्रोप्रिएट होता है और कब अप्रोप्रिएट नहीं होता है. सो डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली टू लार्ज ऑडियंस, प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल्ड और एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन. आपको लेक्चर कब लेने की जरूरत होती है, जब कोई ऐसी आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने क्विकली देनी है एंड देयर इज ऑडियंस इन अ लार्ज, ठीक है, देन यू नीड टू हैव अ लेक्चर्स. और लेक्चर की कब जरूरत नहीं होती, जब आपने कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को बताना है या आपने उसकी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ लेक्चर. प्रेजेंटिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन बिफोर यूजिंग अदर मीडिया और एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल ब्रीफ लेक्चर बिफोर प्लेइंग अ वीडियो टैप, डीलिंग विद द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग फीलिंग एंड एटीट्यूड. जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या कोई अपनी एक्टिविटीज़ करनी है तो आप क्या है, थ्रू वीडियो टेप के जरिए भी यूज़ कर सकते हो
और फिर क्या कर सकते हैं कि इसमें इस जो लेक्चर की कब ज़रूरत नहीं, जब आपने इन्फॉर्मेशन का, जब अपने फीलिंग या एटीट्यूड की बात है तो देन देयर इज अ नो नीड फॉर लेक्चर्स. प्रोवाइड अ ओवरव्यू ऑफ टॉपिक. जब आप किसी टॉपिक का ओवरव्यू बताना चाहते हो, मे बी यू कैन डिलीवर थ्रू द लेक्चर्स. एंड लेक्चर कब ज़रूरत नहीं होती? ट्रेनिंग इन साइकोमोटर हैंड ऑन स्किल. जब आपने कोई साइकोमोटर स्किल मीन कोई आपने स्किल सिखानी है या कोई आपने कोई ऐसा टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशंस करानी है तो देन देयर इज अ नो नीड फॉर लेक्चर. अराउजिंग द इंटरेस्ट इन अ टॉपिक. जब आपने किसी टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करना है, यू रिक्वायर टू टेक अ लेक्चर. एंड नॉट कब नहीं होता, देन व्हेन टीचिंग high level cognitive skills, synthesis and evaluations. As I told you, Bloom, according to the Bloom taxonomy, there is a 6 cognitive domain. आपने पढ़े होंगे, उसके अंदर 6 उसकी characteristics बताई गई हैं, जो इसमें 3 जो होती हैं वो low levels होती हैं and 3 are the higher level जो आपकी learning skills होती हैं, जिसमें क्या है remembering, understanding and applying. ये क्या है, लोअर ऑर्डर्स हैं. और हाई ऑर्डर्स में क्या, एनालाइज करना, एवेलुएट करना एंड क्रिएट करना. ये सारी किस चीज़ में आ जाती है? हायर ऑर्डर थिंकिंग में आ जाती है. प्लीज आप इसको नोट कर लें, लिख लें आप. Planning interactive lectures. So effective lecture do not just happen, they are planned. The educator must establish the purpose of the lecture, consider the logistic of the lecture, plan a variety of approaches. For example, the use of questioning, media, small group activity, prepare a set of lecture note. So these are the main, when you are going to plan the lecture, you must establish the 4 things in your mind. First of the purpose of the lecture, length of the lectures, variety of use the media and questioning, small group activities, and prepare a set of lecture note. So first of all, purpose of the lecture. The primary purpose of the lecture to transfer information from the instructor to the students. Before developing the content of the lecture, it is good idea to clear state the purpose of the lecture. This is the primary purpose of the lecture. क्या होता है? Transfer the information to the students. But before developing the content of the lecture, it is very good idea to clear the state the purpose of the lecture. The purpose of lecture should be described in journal terms. आपको अपने पर्पस जो है जर्नल टर्म्स में बताना है. what student will learn during the lecture, it is usually is not written in the measurable term. By the contrast, an objective is a precise and measurable. आपके ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा कि क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए. इससे एक स्मार्ट वर्ड बनता है. क्या बनता है? मेजरेबल स्टेट. ठीक है. डिस्क्राइब. आप हेलो बाजी, सुनो, 2 घंटे में ब्रेक ले सकते हैं ना? हाँ ठीक है. गला खुश्क हो जाता है. Oh, the purpose should be described in the okay. By contrast, an objective is a precise and measurable statement. Describe what the student will learn by attending the lecture. Depending on the design of the lecture, there may be a purpose, objective, or both. So for example, I'm sharing the one topic and I will share how to prepare the effective, how to prepare the purpose, how to clear the topic. Like for example, following is an example of the lecture topic with the both a purpose statement and an objectives. Lecture topic, development of the placenta. For example, the lecture topic is the development of placenta. So purpose, what should I write the purpose? The purpose of this lecture is to get acquaint the students with the development of placenta. Student will identify the placenta, type of placentations, the embryology of the placenta, and the function of the placenta. So there is the purpose must be like that in this lecture. This is the topic of the lecture. This is the purpose in this lecture. I will clear you. क्या क्या आप करोगे इसमें, क्या करोगे? स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे प्लेसेंटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है एंड इसका फंक्शन क्या होते हैं. सो ऑलवेज पर्पस शुड बी वेरी क्लियरली. सो ऑब्जेक्टिव, हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव. After attending the lecture, the student will be able to locate the placenta, identify the type of placenta, describe the embryology of the placenta, and match the function of the placenta to their correct descriptions. मीन आपके ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि आफ्टर मेरी ये जो डिस्क्रिप्शंस के या मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद ऑडियंस किस काबिल हो जाएंगे कि वो लोकेट कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कितने टाइप का होता है, इसकी क्या एम्ब्रियोलॉजी होती है,
और इसके क्या फंक्शन होते हैं इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, टू देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, और करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ उसको बता सकते हैं। So logistic. After determining the purpose and objective of the lecture, the instructor should next consider its length. आपने देखना कि कितने टाइम का कितने मिनट में आपका ये प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जैसे हम लेक्चर प्लान बनाते हैं, ठीक है, लेक्चर प्लान में हम क्या करते हैं, उसमें बताते हैं कि इतने कंटेंट है, इतने मिनट में मैं ऑडियंस को क्या बताऊंगा, कितने में फीडबैक लूंगा, टोटल कितना टाइम मेरा यूटिलाइज होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द लेक्चर लॉजिस्टिक लेंथ। लॉजिस्टिक मीन लेंथ ऑफ द लेक्चर्स। Arendando et al. 1994 set the recommended lecture time at 45 minutes, including approximately 15 minutes devoted to the audience interactions. उसने कहा अरेंडोडो के मुताबिक उसने कितना टाइम रिकमेंड किया था, 45 मिनट, और 15 मिनट क्या होते हैं डिवोटेड टू द ऑडियंस इंटरेक्शंस, और यू कैन टेक दैट अटेंडेंस एज वेल। सो रैनर ने इसको रिकमेंड किया था, रिकमेंड दैट द लेक्चर लास्ट नो लॉन्गर देन 30 मिनट। रैनर के मुताबिक वो कहता है लेक्चर ज़्यादातर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरैक्टिव लेक्चर शुड लास्ट नो लॉन्गर देन 60 मिनट विदाउट गिविंग द स्टूडेंट ब्रेक और बेस्ड ऑन द ऑथर एक्सपीरियंस। मीन उसने कहा है कि ज़्यादा जो इंटरैक्टिव लेक्चर है मस्ट नॉट मोर लॉन्गर देन 60 मिनट, 60 मिनट से ज़्यादा लेक्चर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो माइक्रो टीचिंग की अगर बात करें तो माइक्रो टीचिंग का आपने देखा तो उसने कहा कि वी ओनली टीच द स्टूडेंट्स ओनली 30 मिनट्स, teach the 5 minutes and next 5 minutes you can take the feedback and just give the clue to the students. Logistic lectures. Number of the participants attending the lecture has a significant impact on how the lecture is presented. Group size determined. Depend करता है कि group size कितना है, use of questioning, amount of interactions है, selection of use of media है, overhead transparencies है, slide computer based projections है, video audio है, and use of small group activities such as case study, role play and problem solving exercise. इसमें ये बताया गया कि लॉजिस्टिक जो इसकी लेंथ होगी आप किस तरीके से करेंगे, कितने साइज का है, क्लासरूम कितना है, कितने ग्रुप की क्लास है, कितने ऑडियंस है, उसमें कितने लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लासरूम में क्या कितने ऑडियंस होंगे, तो कितने 100 स्टूडेंट है तो उसमें कितनी फीडबैक क्वेश्चनिंग हम कर सकते हैं, अगर 50 स्टूडेंट है तो कितने आपके क्वेश्चन का पूछ सकते हैं, अगर आपके 20 स्टूडेंट है तो यू हैव अ मोर फ्रीक्वेंटली चांस टू गेट द टेक द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट। अगर ज़्यादा होंगे तो लेस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 1 घंटे का लेक्चर है 45 मिनट का है तो अगर आप सब स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू आई टोल्ड यू द 2-3 पीपल, उनके पर्सपेक्टिव से मैंने शेयर किया है कि वो कितने रिकमेंडेड उन्होंने टाइम दिया है, ठीक है। सो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आप किस तरीके से स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं, आप उनको केस स्टडीज दे सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज के जरिए भी आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑडियंस को ज़्यादा इफेक्टिव उनको इनकरेज करने के लिए, या कहना चाहिए कि उनकी ज़्यादा क्लास पार्टिसिपेशन के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने होने चाहिए, जैसे 1 to 20 हैं तो बहुत एजुकेटर एंड स्टूडेंट आस्क मैनी क्वेश्चन, स्टूडेंट डिस्कस लेक्चर कंटेंट विद एजुकेटर अमंग देमसेल्फ। अगर 1 to 20 स्टूडेंट हैं तो इसमें ज़्यादा चांस है एजुकेटर और स्टूडेंट दोनों फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड स्टूडेंट डिस्कस लेक्चर कंटेंट विद द एजुकेटर अमंग देमसेल्फ, वो एजुकेटर से भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। अगर 21 to 30 स्टूडेंट हैं तो एजुकेटर आस्क क्वेश्चन, सिर्फ एजुकेटर क्वेश्चन पूछेगा, विच स्टूडेंट आंसर करेंगे, स्टूडेंट आस्क सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, देयर इज सम डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डिस्कशन हो सकती है लेकिन ज़्यादा में भी इट कैन नॉट लीड द मोर लॉन्गर टाइम्स। 31 to 50 स्टूडेंट, एजुकेटर आस्क क्वेश्चन, विच स्टूडेंट आंसर, स्टूडेंट आस्क सम क्वेश्चन, देयर इज अ लिमिटेड डिस्कशंस अमंग द स्टूडेंट्स। सो इसमें आपने देखा कि यहाँ लिमिटेशंस आ गई, क्योंकि ज़्यादा 30 to 150 स्टूडेंट है तो इसमें जो है लिमिटेड डिस्कशंस अमंग्स द स्टूडेंट है। अगर 51 to 100 है, एजुकेटर आस्क क्वेश्चन नॉट एंड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंसर दैम, स्टूडेंट आस्क सम क्वेश्चन, स्टूडेंट आर एबल टू डिस्कस कंटेंट ओनली विद द अदर स्टूडेंट सीटेड नियर टू दैम, देयर इज अ लिटिल और नो फीडबैक टू द एजुकेटर्स। यहाँ पे हमने देखा कि लिमिटेशंस हैं, यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट मस्त पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर 100 से हैं, ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा हैं, एजुकेटर आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट रेज देयर हैंड टू देयर एग्री और डिसएग्री,
इसमें स्टूडेंट और एजुकेटर क्या कहेंगे, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. देयर इज अ फ्यू कमेंट और क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट. Students are able to discuss content only with other students seated near them. There is a little or no feedback to the educators. So लेक्चर के कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम दो लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू को पहले डिस्कस करेंगे. सिल्बरमैन ने कहा था 1990s के अंदर, सजेस्ट 5 अप्रोचेस टू मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स understanding and retention during lecture. These can be used to help ensure the effective transfer of knowledge. Use of opening ceremony, summary. Use an open summary. कैसे आप करेंगे जब आप लेक्चर को उसने अकॉर्डिंग टू सिल्बरमैन के उसने 5 अप्रोचेस को मतलब उसको रेकमेंड किया है कि ये क्या कर सकती है, मोर अफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट रिटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट को अफेक्टिव नॉलेज को अडॉप्ट करने में. सो उसने कहा है कि यूज, सबसे पहले आपने क्या करना, यूज एन ओपन समरी एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, प्रेजेंट मेजर पॉइंट एंड कंक्लूजन टू हेल्प द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज देयर लिसनिंग. सबसे पहले बिगनिंग में करना क्या होगा कि आपने लेक्चर के जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर पॉइंट हुए, उनको आपने कंक्लूड करके एक ऑर्गेनाइज में वे में आपने स्टूडेंट को एक समरी देनी है, ताकि स्टूडेंट की जो है अपनी लिसनिंग को वो ऑर्गेनाइज कर सके. ठीक है. प्रेजेंट द की टर्म, रिड्यूस द मेजर पॉइंट इन लेक्चर्स टू की वर्ड दैट एक्ट एज अ वर्बल सब हेडिंग और मेमोरी एड. आपने जो देखा जो डिफिकल्ट टर्म है, यू कैन डिस्क्राइब दैट कैन यूज मोर एंड मोर. ज़्यादातर जो टर्म यूज कर रहे होते हैं आपने उनको अर्लियर उनको डिफाइन करना है ताकि स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड कर ले. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल भी बताया, व्हेन पॉसिबल प्रोवाइड द रियल लाइफ इलस्ट्रेशंस ऑफ द आइडिया ऑफ इन द लेक्चर्स. जब आप समझते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट में कौन सी जो है पॉइंट में आपको अपनी लाइफ की जो रियल लाइफ की जो एग्जाम्पल है आप शेयर कर सकते हैं. यूज एनालॉजीज. इट इज इफ पॉसिबल to make a comparisons between the content of the lecture and knowledge of the student already have. एनालॉजीज में ये देखते हैं कि जब हमने देखना कि स्टूडेंट्स का पहले से इस टॉपिक के बारे में क्या आइडिया है बिफोर टीचिंग और बिफोर हैविंग द नॉलेज. Using visual backup. Use a variety of media to enable student to see as well as hear what is being said. आपने उनका विजुअल बैकअप भी देखना है. टाइप ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन. आपने सबसे पहले क्या करना होगा जब आपने क्रिएटिंग एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शंस. Review lecture objective. Ask a rhetorical questions. Ask for a show hand to response to a general questions. Ask a series of questions related to the lecture topic. Use an interesting or famous quotations. Relate the topic to the previous covered content. इन चीज़ों को आपको देखना है. Case. Use a case study or problem solving activity. Use a videotape or other media. आप बहुत सारे आप लेक्चर का ओवरव्यू अपने ऑब्जेक्टिव को बताएंगे. आप उनको रिटोरिकल क्वेश्चन जो आप समझते हैं कि मुश्किल है आप उनको बता सकते हैं. आप पूछें कि इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी है. अगर कोई है तो आपका जनरल वे में उनको बोलें कि अपना हैंड रेज करें. ठीक है. अगर उनके पास आस्क सीरीज ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द, आप उनको बार बार क्वेश्चन करें, 5 मिनट टीच करें, 5 मिनट के बाद पूछें कि आया उनको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. और आप उसमें क्या एक फेमस कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं जिससे आप समझते हैं कि वो इजीली जिससे वो इसको अंडरस्टैंड करें और रिटेन करें. ठीक है. और ये भी अगर सबसे रूल ये भी होता है कि जब आपने जो प्रीवियसली पढ़ाया है आप यू नीड टू रिव्यू फर्स्ट एंड देन यू नीड टू अगेन स्टार्ट द न्यू टॉपिक, which is very important for the student. In this way student will be on track. You will get to know that student they learn the last you teach them. शो एन अप्रोप्रिएट कार्टून विद द ओवरहेड और ट्रांसफर. आप अपनी स्लाइड्स के अंदर उनको क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो. ठीक है. और गिव द डेमोन्स्ट्रेशंस. आप उनको कोई डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हो, कोई रोल प्ले करवा सकते हो. टॉपिक टू फ्यूचर वर्क एक्सपीरियंस. शेयर द पर्सनल एक्सपीरियंस. रिलेट द टॉपिक टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस. लेक्चर नोट की क्या इंपॉर्टेंट होती है? वाई लेक्चर नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेक्चर नोट हेल्प द इंस्ट्रक्टर स्टे ऑन टॉपिक एंड प्रिवेंट गेटिंग लॉस्ट. बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना होता है कि मैं तो इतने सालों से मेरा बहुत सारा है, मेरा तो सारी किताब जैसे मेरे ही माइंड में नहीं. ऐसा नहीं होता.
आप इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में गैप आ सकता है, आप भूल सकते हैं कि इसके बाद कौन सा नोट जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं स्टे ऑन द टॉपिक एंड प्रिवेंट गेट लॉस्ट, कवर द मेन पॉइंट विदाउट फॉरगेटिंग एनीथिंग। इसका मेन बेनिफिट ये भी होता है कि आप जो मेन पॉइंट को विदाउट फॉरगेटिंग आप पूरे प्रॉपर चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ग्लांस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड क्विकली रिटर्न अटेंशन टू द स्टूडेंट्स। आप क्या कर सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इज इट क्लियर टू यू व्हाट आई एम टीचिंग टू यू पीपल, प्लीज रिस्पॉन्स, और आर यू स्लीपिंग? हेलो, असल टाइम हो गया, मेरा ख्याल 4 बज गए, मैं गैप ले लूँ ना, थक गई हूँ। वैसे 2 घंटे के लंबा नहीं होता, 3 घंटे क्यों? अल्लाह, मेरा गला, मैंने पानी भी बोतल भी इधर छोड़ा है। मेरी टोन अच्छी है, बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं लगती, मेरी टोन अच्छी है। है, देखो अभी आज मैं लेक्चर मेथड पढ़ा रही हूँ ना, तो वो उसके मैंने डिफरेंट लोगों के कॉन्सेप्ट डील किए, तो उन्होंने कहा कि 60 मिनट से नो लॉन्गर लेक्चर नहीं होना चाहिए, होती ही नहीं। और आपने माइक्रो टीचिंग की बात करें तो वो कहता है 30 मिनट टीच करना, जिसमें 5 मिनट टीच करना और 5 मिनट आपने फीडबैक लेना है, दैट इज इनफ फॉर द स्टूडेंट। अदरवाइज अगर आप उनको आप उसको एंथुसियास्टिक रखना चाहते हो ना, ये बहुत माइंड नंबिंग सिचुएशन है, पता आप जब आप ऐसे टीच करते रहोगे। सो आई वांट टू टेक द ब्रेक प्लीज। जी मैम, ब्रेक, ओह वेरी गुड। कहते हैं मैम ब्रेक, गुड, वी हैव अ ब्रेक, गिव मी 10 minutes, so I will let me drink the water, then I'll come back, okay? We will continue from lecture note. इसको मैं क्या कर, इसको ऑफ करना, ऐसे रन दो, चलो ठीक है। आई एम कमिंग बैक, प्लीज टेक, आप भी ले लें ब्रेक, ले लें, पानी पी लें, मैं भी रेस्ट करके आई, पानी पी के आई, ओके? आप ऐसे बनाते हो, कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, नहीं मुझे नहीं दिमाग में नहीं लगता। आप क्लास में थे, आपका एक्सेंट, आपका ऑडियंस, आपका मतलब कोई इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सब सामने बैठा है। अब आप लिखोगे, वो बोल नहीं ना सकते साहब, उन्होंने जब तक लिखना पूरी देर में बड़ा दिन काम कर जाए, क्लास में रनिंग में बहुत
जान ही रहा है इस्लाम का जिक्र ही किया जाता है। मैं एक से एक ले जाऊँ एक नंबर पे लिखित करूँगा मैं डर के मैडम से बोलूँगा जाके मैं लाइव अपने को तो है मैं जाकर मैडम से बोलूँगा आपका आपका ठीक है अप्लाई नहीं किया मेरा मतलब ये है मैंने कुछ नहीं कर बस के आप और चार ये मैं तो अच्छी काम दो दिन मीटिंग की बात है कि जनरल मीटिंग अवसर आने चल रही है अभी काम 10 मीटिंग के लिए लेकिन कल की रात में सिर्फ मैं शायद बाकी से के बाद इस बात में
और क्या बना अपना क्या हुआ? हैं? नहीं, नहीं, और उसका क्या कुछ नहीं। Ini ada selalu komponen apa? Mas eles comem. Eles comem. Quando você मेरी अभी तो ऑर्डर में अभी तो मेरी सर्विस की बोल रही है मेरी इधर हॉबी नहीं रही संडे और डेढ़ बजे तक जब 3 बजे वापस आने में थोड़ा सा काम करेगा वैसे भी पता ट्रेन थोड़े से लोग होते हैं फिर चले जाते हैं ना मुश्किल होता है लोगों को मैनेजमेंट को डिफिकल्टी होती तो इनको तो कॉलेज को चाहिए काम हाँ उनको चाहिए 2 बजे से आप जो है मेरी शुक्र है कि मैंने वो सब जो सही बताया हाँ अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे दो तो आप देखें ना जैसे ऐसे लोग तो पॉसिबल नहीं है मेरी इसीलिए सैलरी कहाँ मेरी जनता के साथ अच्छा आपकी मिसाल की 2 की बेटी है ना हाँ मिसाल की 2 हाँ ये घंटे बनते हैं 8 तक 40 घंटे हैं अच्छा हफ्ते में
ठीक है, मैं देता हूँ 30 घंटे, मेरी सैलरी भी उस हिसाब से कम। चले भाई, कोई भी आए रो करनी तो सबने ड्यूटी है। हाँ, hello my dear student, everybody is with me now. I'm back. Hello. कहीं सोने सुने तो नहीं चले गए? जी मैम, खतीजा अब्दुल्ला. So how many of you are back? दीला. अच्छा, थोड़े स्टूडेंट होते, ज्यादा नहीं होते, है ना? नीलम राशिद जी 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 जी. ओके जी. ओके, लेट्स स्टार्ट. So we discuss about lecture note. So the importance of lecture notes we discussed already. So we learn in the lecture note, stay on topic. The benefit of the lecture note is stay on the topic and prevent getting lost, cover the main point without forgetting anything, and glance at a specific point. कि आप एक स्पेसिफिक पॉइंट को देखते हो, क्विकली रिटर्न टू द अटेंशन टू द स्टूडेंट, ताकि आप एक पॉइंट को देखते हो और फर्दर जो है आपकी जो है वो क्विक अटेंशन जो होती है, आप स्टूडेंट्स के अटेंशन को गेट करते हो और रिलैक्स एंड फोकस ऑन डिलीवरिंग इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट टॉपिक टू मेक नेक्स्ट. ठीक है, सो इसमें आप रिलैक्स होते हैं और आपका फोकस क्या होता है, डिलीवरिंग विदाउट वरिंग. ठीक है, कि इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा. ये सोर्स भी मैंने मेंशन किया है, सोवलन एंड वर्सन्स्की. So there is a 7 basic approaches the instructor can use the outline key point. Standard sheet paper full page और 2 column, आप 1 sheet और 2 page use कर सकते हैं. अपने नोट बनाने के लिए अगर आप हाथ से लिखना चाहते हैं, नोट कार्ड बना सकते हो, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज बना सकते हो, फिलअप चार्ट पेज बना सकते हो, स्लाइड बना सकते हो जैसे मैंने बनाई हुई है. ठीक है, इस तरीके से करके आप अपने नोट्स को बना सकते हो. आप यानी कि स्टैंडर्ड शीट का यूज़ कर सकते हो, 2 कॉलम बना के यूज़ कर सकते हो. मेरी बात को समझ रहे हो ना? नोट कार्ड बना सकते हो और ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज भी बना सकते हो, फिलअप चार्ट पेज बना सकते हो और स्लाइड्स बना सकते हो. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्शंस का ये होता है. ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चनिंग टेक्निक. व्हाई इज इम्पोर्टेंट? क्वेश्चनिंग टेक्निक की क्या इंपॉर्टेंस होती है ऐसी? So questions can be used to introduce the lecture, stimulate interaction throughout the lecture and summarize content. ठीक है, लेक्चर क्वेश्चन जो होता है ना, that is very effective for the learning. Good. What you send this symbol? You are giving me the very good. Okay, question can be used to introduce the lectures, stimulate interaction throughout the lecture and summarize content involving students through questioning help to maintain their attentions, which is critical when topic are complex and lecture are long. Suggestions for using question include ask questions of the entire group. Those who wish to volunteer may do so, although the educator must guard against some student डिनोमिनेटिंग द डिस्कशंस. ठीक है, इसमें ये बात की जा रही है कि आपने जब भी क्वेश्चन टेक्निक का ये फ़ायदा था कि जब भी आप लेक्चर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये क्या करता है, आपके और स्टूडेंट के दरमियान एक स्टिमुलेट यानी कि इंटरेक्शन को स्टिमुलेट करता है. दोनों के दरमियान इंटरेस्ट डेवलप होता है. दोनों क्या होते हैं, स्टूडेंट और जो है टीचर जो होता है, दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं थ्रू द क्रॉस क्वेश्चनिंग. और ये क्या हेल्प क्या करता है, मेंटेन देयर अटेंशंस. इससे जो होती है ऑडियंस को क्या हेल्प मिलती है, अटेंशंस. वो प्रॉपर्टी क्या करते हैं, अटेंशंस देते हैं, पे अटेंशंस करते हैं, विच इज़ क्रिटिकल व्हेन द टॉपिक आर कॉम्प्लेक्स. ये थोड़ा सा उसने कहा कि क्रिटिकल हो सकता है जब टॉपिक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो या फिर लंबा हो. सजेस्ट सम
सम यूजिंग क्वेश्चन इंक्लूड, तो फिर आप कुछ क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आज द क्वेश्चन, तो आप सारे ग्रुप से पूछ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, और उनमें से जो वॉलंटरी देना चाहे तो वो आंसर का जवाब भी दे सकता है, मतलब आंसर कर सकता है, ठीक है। So number 2, target a questions to a specific students when the audience is relatively small. जब बड़े हैं तो आप जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अगर छोटा उनकी relatively small audience है तो फिर आप उनको specific student से पूछ सकते हैं। When the audience is relatively small, this technique can be used to involve more of the students. Use student name when asking answer question. This recognition is powerful motivator. जब आप स्टूडेंट्स को नाम से बुलाते हैं, डेट क्रिएट अ रिस्पेक्ट, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फील करता है कि टीचर रिमेंबर माय नेम और उसको मेरे नाम की रिकग्निशन है, तो उसको बहुत अच्छा, ये एक पावरफुल मोटिवेटर है जब हम व्हेन वी आर कॉलिंग द स्टूडेंट बाय देयर नेम ड्यूरिंग द आंसर क्वेश्चनिंग सेशंस। लॉर्ड, ओके, प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट व्हेन स्टूडेंट रिस्पॉन्ड। जब भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स करता है, मे बी लेकिंग में और मे बी द फुली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट इज शेयरिंग, आपने जब उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना तो स्टूडेंट के अंदर आप जब मोटिवेट करेंगे तो स्टूडेंट विल यूज टू नेक्स्ट टाइम भी वो इसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा और वो प्रॉपर तरीके से उसको कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। दिस प्रेज विल हेल्प टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव क्लाइमेट एंड विल इनकरेज मोर स्टूडेंट टू एंटर इनटू द ग्रुप डिस्कशंस। इससे क्या होगा कि जब टीचर स्टूडेंट्स को प्रेज करेगा तो इसमें क्या, यानी कि उसको क्या करेगा, उसकी तारीफ करेगा या उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव क्लाइमेट इन क्लास के अंदर जो होता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट को जो इनकरेज मिलेगी, स्टूडेंट जो होता है वो प्रॉपर स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटायर इनटू डिस्कशन, वो सारी डिस्कशंस में भरपूर होकर इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। रिपीट स्टूडेंट क्वेश्चन एंड आंसर टू इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट हियर द डिस्कशंस। आपने क्या करना है, रिपीट स्टूडेंट क्वेश्चन एंड आंसर आपने रिपीट भी कर सकते हैं ताकि क्या हो सके, टू इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट हियर द डिस्कशंस। व्हेन द स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन, द एजुकेटर कैन आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली, respond by asking the student in a different related questions or offer question to the other students. So here are some presentation technique. We have learned the guidelines about the question technique. Now I would like to discuss with you presentation technique. A number of techniques can be used to make a lecture more interactive and effective. Use the lecture note prepared during the planning stage. आपने क्या करना है कि using the lecture note क्या करना है, during the planning stage, the note include reminder and the key point in the lectures, introduction, body and summary. इसमें क्या होना चाहिए कि आपके की पॉइंट होना चाहिए, that should be the reminder for you कि इसका टॉपिक क्या, इंट्रोडक्शंस क्या है, इसकी बॉडी क्या और इसकी समरी क्या है, कि आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द लेक्चर्स। ओपन द लेक्चर विद द गुड इंट्रोडक्शंस। मैंने गुड इंट्रोडक्शंस के बारे में भी आपको बताया है कि गुड इंट्रोडक्शंस कैसे लेना है। आपने जैसे मैंने आपको सिल्वर मैन की आपको कौन बताया था, अकॉर्डिंग टू उसके कि उसने क्या जो तरीका है वो रेकमेंड किया है, डिज़ाइन टू कैप्चर द इंटरेस्ट एंड अटेंशन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। गुड इंट्रोडक्शन से क्या होगा, जो डिज़ाइन जो है वो क्या हेल्प करेगा, इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। Communicate on a personal level. The educator should attempt to relate to the student during the lectures. Maintain the eye contact with the student. Eye contact give the educator feedback on how well student understand the content and help to communicate a caring attitude on the part of the educators. So eye contact, अगर आपका ऑडियंस की तरफ आई कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो दैट मीन जो आपस में बातें करते रहे, पीछे पता ही नहीं होगा कौन अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन अटेंटिव बैठा है। सो दैट मीन आई कॉन्टैक्ट इज द वेरी फोर्सफुल वेपन ड्यूरिंग द क्लासरूम विच वी आर यूजिंग for delivering the information to your audience. So if you will have a poor eye contact, you will not get the proper attention of your student. Exhibit enthusiasm about the topic. 5th नंबर पे कि आपके अंदर आपने अपने अंदर क्या enthusiasm जो है वो टॉपिक के बारे में आपने स्टूडेंट्स को देना है। स्माइलिंग, मूविंग अराउंड द रूम, gesturing with hand and arm project a feeling of energy and excitement. ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि
आपको ये नहीं कि एक ही जगह पे खड़े हैं, वहाँ पे आप हिल ही नहीं रहे हैं, आप एक बिल्कुल आइडल की तरह खड़े हो गए हैं। आपने क्या करना है, स्माइल करना है, मूव करना है अराउंड द रूम, गेस्चर्स विद द हैंड, और आपने क्या करना है, आर्म प्रोजेक्ट फीलिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि अपने हाथों से आपने ऐसे क्लूज देने हैं ताकि यू विल शो योर सेल्फ दैट यू आर एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक एंड क्रिएटिंग असाइनमेंट excitement among your students or your audience. So, presentation technique, project the voice so that those in the back of the rooms each can hear clearly. So, for large group lecture hall, use a microphone if necessary with the long cord that will permit movement around the rooms. Avoid the use of slang or repetitive words, phrases, and gestures that may become the distracting with the extended use. Avoid the use of filler, for example, you know, you know. So आपने इस तरह के जो है इस तरह के जो स्लैंग वर्ड्स हैं उनसे और रिपीटेटिव वर्ड्स हैं उनसे अवॉइड करना ड्यूरिंग योर लेक्चर्स, ठीक है, ताकि आप ऑडियंस जो है वो गेट मोटिवेटेड रहें, ठीक है। अगर आप बार बार एक फॉर एग्जाम्पल ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज यू नीड टू अवॉइड। यूज अ वैरायटी ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया, आप वैरायटी ऑफ मीडिया यूज़ कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हो, समटाइम अपनी स्लाइड शो कर सकते हो, डिस्कशंस ले सकते हो, आप डिफरेंट तरीक़ों से आप ऑडियंस को मोटिवेट कर सकते हो। प्रेजेंटेशंस में आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड एनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क द क्वेश्चन। आपने क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है करने हैं और स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि उस क्वेश्चन को पूछे। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक व्हेन द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन और मेक कमेंट, यूज स्टूडेंट नेम एज ऑफन एज पॉसिबल। उसने कहा कि जब आपने पॉजिटिव फीडबैक देनी है, प्रोवाइड करनी है हमेशा स्टूडेंट को, व्हेन स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, जब स्टूडेंट आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन या आंसर पूछते हैं तो आपने ऑलवेज पॉजिटिव कमेंट करना है ताकि स्टूडेंट जो है मोटिवेट, और वो शायद अगर स्टूडेंट ने गलत बोल दिया है और आपने उसको इनकरेज कर दिया, डिसइनकरेज कर दिया, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं करेगा, शायद वो हेजिटेट फील करे, वो समझे कि मैं, लेकिन अगर वो लिटिल और ब्रोकन वर्ड में भी आपसे कोई बात शेयर करता है, you need to take the positive feedback to the student so that he will have a habit, he will produce his habit to have a question in the classroom. Display a positive use of humors, for example आपने हंसी मजाक करना है, humorous transparencies और slide topic related to the story, आप उनको कोई स्टोरी सुना सकते हैं कुछ इस तरह से टॉपिक से रिलेटेड, आप कोई भी उनके साथ उनको क्या कहते हैं एंथुजियास्टिक रखने के लिए या उनको अटेंटिव रखने के लिए आप अपना पॉजिटिव यूज ऑफ humor कर सकते हैं। मेक अ स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द लेक्चर, these transitions should be highlighted in the lecture note and might include नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं इसमें क्या, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आपने क्या करना है, क्या बताना है कि ओवरव्यू ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ओवरव्यू ऑफ एजेंडा बिटवीन द टॉपिक, चेंज द मीडिया, क्या मीडिया यूज करोगे, एंड इंट्रीम समरी बिफोर अ न्यू टॉपिक, आपने समरी बतानी है नए टॉपिक से पहले, कोई भी आपने हमेशा समरी, जैसे मैंने आपको बताया आपने जब भी लेक्चर बताना है तो आपने ओपनिंग समरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो आपके मोटिवेटेड रहते हैं और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप होता है। एंड एक्टिविटी, केस स्टडीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज को भी आपने प्रेजेंट, ताकि प्रेजेंट ऑलवेज टीचिंग ऑन द टेक्स्ट इज ऑलवेज इजीली बोरिंग, सो आपने छोटी छोटी एक्टिविटीज को साथ में जो है वो लेकर चलना है। क्लोज द लेक्चर्स विद ब्रीफ विदाउट क्लोज द लेक्चर विद अ ब्रीफ बट पावरफुल समरी, आपने लेक्चर को जब करना क्लोज करना तो उसको ब्रीफ आपने करके थोड़ा सा लेकिन पावरफुल समरी हो, ताकि स्टूडेंट को आपने जितना पढ़ाया है वो उनको उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द लेक्चर्स, अगर आप इतना बोल रहे हैं, आपका लेक्चर हो रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर गई, मैंने पानी पिया क्योंकि मैं 2 घंटे से बोल रही थी, तो इसलिए मैंने पानी पिया। सो गो फॉर अ शॉर्ट वॉक जस्ट बिफोर द लेक्चर, आपने जब लेक्चर जाने से पहले आपने पहले शॉर्ट वॉक पे जा सकते हैं। लुक ओवर योर लेक्चर नोट वन लास्ट टाइम, ठीक है। ग्रेट स्टूडेंट हैज़ as they enter the room, shake their hand, welcome them to the lectures and talk to as many of them as possible, ठीक है। जब आपने एंटर होना है तो ग्रेट स्टूडेंट्स ने कहा, ग्रेट स्टूडेंट एज दे एंटर द रूम शेक देयर हैंड, हमेशा हाथ मिलाते हैं, दूसरों को वेलकम करते हैं, ठीक है। दिस इज द गुड एटीट्यूड एंड ग्रीटिंग टू अदर्स। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ टू रिलैक्स बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर्स।
so you can maintain the rhythm during your lecture. Tip to reduce the presentation anxieties को जो है रिड्यूस करने के लिए क्या टिप हो सकती है? अवॉइड ईटिंग टू बिग मील बिफोर द लेक्चर. मैंने भी खाना नहीं खाया इसलिए मुझे पता था कि मैंने यही कुछ पढ़ाना है. So not only will or a full stomach make you drowsy. क्या आपने देखा है कि जब आपका पेट भरा होगा तो आप बहुत लेजी हो जाएंगे, आप इतने एक्टिवली प्ले नहीं कर सकते, स्पेशली आफ्टर 1 o'clock. But it make it more difficult to move around the room with energy. So इसके लिए आपको, जो ऐसे मैंने बताया था कि हमने प्रेजेंटेशन टेक्निक में पढ़ा था कि आपने रूम करना, आपने एक तरह खड़े नहीं रहना है, आपने क्या करना, वॉक करनी है. स्टूडेंट एक से इधर से इस लाइन से उस लाइन में मूव करें ताकि स्टूडेंट को आप एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक पता चले कि आप बिल्कुल आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. ठीक है, तो इससे क्या आप एनर्जी शो करेंगे. अराइव अर्लियर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज रेडी बिफोर द फर्स्ट स्टूडेंट अराइव. आपने सबसे पहले चले जाना, पहले स्टूडेंट के आने से भी पहले. यू शुड ऑलवेज गो देयर. So this is another good point to reduce your anxiety. Make sure all the media equipment are working. ये आपको पता होना चाहिए. Locate and check the light and temperature control है. Decide where the lecture note will be placed. ये आपने देखना कि कहाँ lecture note आपने डाले हैं, कौन सी जगह पर रखे हैं. For example, on the lectern, desk table, and when they are not being held. So having a glass of water during the lecture, go for a short. ये तो मैंने पढ़ लिया. So evaluate lecture. आप lecture को कैसे evaluate कर सकते हैं? There are 3 formal technique which can be used to evaluate the quality of a lecture presentation. The first is feedback from the student and the typically involve asking student to complete an evaluation form. जब आपने अपने student से अपने lecture की feedback लेनी है तो आपने करना क्या होगा? आपको करना होगा कि आपने एक form create करना है जिससे आप student की feedback ले सकती है after completing your lectures. The second is a self-evaluation that uses a video recording. आप अपने लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को देख सकें कि मैंने कहाँ गैप है, कहाँ मैंने इस स्लाइड्स को बेहतर से मैं नहीं कर सकी, तो नेक्स्ट टाइम आप इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं. सो दिस इज द वे टू एवेलुएट योर लेक्चर. द थर्ड फॉर्मल एवेल्युएशन टेक्निक है इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑब्जर्वर. अकॉर्डिंग टू सुलेमान एंड Versinski, in 1996, student feedback forms are used regularly in the medical and healthcare education and will not be described in this paper. The use of video or an observer may be new to the some educator and deserve a brief descriptions. So उसने कहा है कि जो आपका जो स्टूडेंट फीडबैक तो हम मोस्टली मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन में, मेडिकल और हेल्थ केयर एजुकेशन में हम लेते ही रहते हैं. लेकिन ये एक टूल है कि हम अपने क्या है अपने जो क्या नाम है एजुकेटर्स को हम एवेलुएट करते हैं. सो इसमें उसने कहा कि आप द यूज़ ऑफ वीडियो और ऑब्जर्वर में बी अ न्यू टू सम एजुकेटर्स. ये नया हो सकता है लेकिन डिजर्व अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस. तो आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस के जरिए भी आप उनको एवेलुएट कर सकते हैं. ओके, आर यू विद मी? हाउ मेनी आर विद मी? शो मी योर रिस्पॉन्स. हेलो नीलम, राशिद, अदीला, नौरीन, एवरीबॉडी इज विद मी? हेलो. Okay, so understanding all the lecture, clear to you? Okay, fine. So follow the 3-step process to conduct the self-evaluation. So yes, self-evaluation is very important. While you are in the future, maybe you will be the teacher. Like today I'm here, you will be here in the future. So it's very important to learn all this tip to having a good lecture techniques. Arrange to have the lecture videotape. Explain the student the reason for the recording equipment. आपने जब वीडियो टेप का यूज करना, आपने अरेंज करना है. सबसे पहले उसको अरेंज करना है. जब आपने फिर अपने स्टूडेंट को बताना है कि इस रिकॉर्डिंग का रीजन क्या है, आप क्यों करना चाह रहे हैं. एट द कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर डिस्ट्रीब्यूट अ स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन फॉर्म इफ एप्लीकेबल. अगर एप्लीकेबल होते हैं, यूज होते हैं, आपने स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन का क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. यूज अ लेक्चर स्किल्स चेकलिस्ट
which the videotape with an experienced presenter if there is one and critique the performance. ठीक है, तो इसके लिए अगर आप क्रिटिक करना चाहते हैं या कोई आपको क्रिटिक करना आप चाहते हो होगा तो आप ऐसी चीज़ों को बना लें, अपने आप को खुद से इतना वो बना लें ताकि आप अपने आप को वेल फॉर्म कर लें, ताकि आपके ऊपर कोई ऐसी लीगल जो ना ऑब्लिगेशंस ना हो, ताकि आप अपने आप को क्लियर कर सकें। तो वीडियो टेप का बहुत फ़ायदा होता है कि आप वीडियो टेप के ज़रिए अपनी चीज़ों को बता सकते हो प्रॉपर, दैट दिस थिंग्स आई टोल्ड एंड दिस वाज द वे टू टीच। सो दिस इज़ द 3-step प्रोसेस टू कंडक्ट द सेल्फ एवेल्युएशन। आप कैसे कर सकते हैं, आप चेकलिस्ट बना सकते हो, आप वीडियो टेप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपने खुद को ही क्रिटिक कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को खुद से एवेलुएट कर सको। Okay, other key point to remember in the preparing the delivering lectures, the first few minutes of a lectures are important. पहले जो होते हैं ना वो बहुत important, जिसमें आपका रिलेशनशिप स्टूडेंट से बन जाता है जब, तो मे बी यू हैव मोर यू नो, आप बहुत आपके पास एक कहते हैं ना जैसे एक पेट्रोल आ जाता है, तो आप गाड़ी जब थोड़ा स्टार्ट करने में मुश्किल, जब गेयरिंग लग जाती है तो प्रॉपर वो चलना शुरू हो जाती है ना, इट इज़ लाइक दैट। जब आपका थोड़ा सा आपका ऑडियंस से कॉन्टैक्ट अच्छा जाता है, ये आपकी ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कॉलिंग द स्टूडेंट बाय नेम, हैविंग द गुड इंट्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, स्टूडेंट और आपके दरमियान जो है गुड इंट्रोडक्शन जब हो जाता है तो आपकी रिप्यूट डेवलप हो जाती है। जब आपकी रिप्यूट डेवलप हो जाती है तो आप रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं और अटेंशंस भी। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आर क्रिटिकल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आर क्रिटिकल। ये बहुत मुश्किल होती है कि वर्बल स्किल्स आपकी जो ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। दीज इंक्लूड अप्रोप्रिएट वॉइस प्रोजेक्शंस, अवॉइड फिलर्स, यूज स्टूडेंट्स नेम, आपने क्या करना, स्टूडेंट का नाम यूज करना है, मेकिंग स्मूथ ट्रांजिशन एंड यूजिंग एग्जांपल एंड प्रोवाइडिंग प्रेज। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी वर्बल स्किल्स का एक आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है स्टूडेंट्स क्या नाम है, आप अवॉइडिंग फिलर्स, फिलर का मतलब है कि आपने ऐसी चीज़ों को जो है उन चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में आपने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों में आपकी जब वर्बल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, रिपीटेडली वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, अपने स्टूडेंट के नाम से बुलाना है। जब आप स्टूडेंट के नाम से बुलाएंगे तो दैट क्रिएट अ रिस्पेक्ट अमंग यू एंड योर ऑडियंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी एंड और इसके अलावा आप क्या करते हैं, यूजिंग एग्जांपल, प्रोवाइडिंग प्रेज, और उनको आपने उनके स्टूडेंट की तारीफ को भी करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल यू आर, ये एक की पॉइंट है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ओके, अदर की पॉइंट इन रिमेंबर टू प्रिपेयरिंग द डिलीवरी लेक्चर, नॉन वर्बल, वो हमने वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हम देखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज इंक्लूड आई कॉन्टैक्ट, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड मूवमेंट। ये क्या हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्बल में हमें कैसी स्किल्स कौन सी होंगी, अब ये क्या है कि नॉन वर्बल में यानी कि आपका आई कांटेक्ट आ सकता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, आपका गेस्चर, आपकी मूवमेंट जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सो effective questioning and interaction are critical to success the lectures. Questioning skill include planning questions in advance, asking a variety of questions, using student name and providing positive feedback. The lecture should be summarized by asking question and using media to review main point. And evaluate using a video recording or an observer can assist the lecture in assessing the quality of presentation and improving lecture. ठीक है, जब आपने एवेल्युएशन की बात करते हैं तो आपने जैसे हमने सीखा है कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने आप को क्लियर भी कर सकते हैं दैट फ्रॉम द लीगल ऑब्लिगेशंस। सो ये क्या होता है कि आप कैन असिस्ट द लेक्चर इन असेसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड इम्प्रूविंग। इसमें आपको पता चल जाता है कि मेरी प्रेजेंटेशन की क्या क्वालिटी, आप खुद को असेस कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि कौन सी स्किल्स को आई नीड टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर। So here are the references. I completed my lecture. I have a plan to start the self-directed learning with you people, but unfortunately time is only 10 minutes. So let's have a gupshup. 10 मिनट में अगर मैं उधर जाऊंगी तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, है ना, ठीक है। बात सुनो, क्या नाम है फैसल, ये 10 मिनट रह गए हैं, मेरे ख़त्म हो गया मोस्ट, है ना। Okay.
So my dear student, hope you understand. In the next lectures, I will ask to this girl, maybe she will load my new lectures. I'll show you just. यस मैम, जी मैम, ठीक। ये मेरा दूसरा, अगर मैंने थोड़ा सा टाइम तो थोड़ा ही रह गया, 10-12 मिनट रह गए, तो ऐसा करो कि वो मेरा लोड कर दो, ये खत्म कर दो, अगली दफा कर लूं। चलो ठीक, मेरे पास तो 12 मिनट आ रहे हैं। हाँ चले ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना। हम्म, हाँ ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। My dear students, and in the next topic we will discuss about the self-directive learning. So have a prior learning and learn and go and find about the self-directive learning. What is self-directive learning? Self-directive learning क्या होती है, ठीक है। इसमें एज ए सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हमें कौन कौन सी जो है एक लर्नर के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देयर इज अ 14 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अडल्ट लर्नर्स, ठीक है। हम 14 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अडल्ट लर्निंग में कौन से एज के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें 2 टर्म यूज होते हैं, पैडागोगी और एंड्रोगोगी, ठीक है। हम इन टर्म्स को भी देखेंगे, दोनों का डिफरेंशिएट सीखेंगे कि दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंशिएट होता है। अडल्ट लर्निंग, सॉरी पैडागोगी, और एंड्रोगोगी क्या होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी लर्न करेंगे, और एक अडल्ट लर्नर बनने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक will be आपने इसके बारे में डिटेल पढ़ के आना, इसको सर्च करना है कि सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। सेल्फ डायरेक्टिव बनने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम बड़ा इसको डिस्कस करेंगे विद डिटेल, ठीक है। इसके बारे में सीखेंगे, और एज ए स्टूडेंट्स वाई सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसमें हम मैस्लो की हायरार्की यूज़ करेंगे, जिसमें हम सारे सीखेंगे कि एक सेल्फ डायरेक्टिव लर्नर बनने के लिए उसकी बेसिक्स जो स्किल्स होती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि एक उसकी जो बेसिक जब नीड फुलफिल होती है, द पर्सन बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बनने के लिए क्या बनते हैं, जब हम होते हैं तो हम ऑटोनोमस हो जाते हैं। जब ऑटोनोमस होते हैं, डैट मीन वी हैव अ, इसका मतलब होता है कि हम जो है वो खुद को खुद के जरिए गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ डायरेक्टर का मतलब भी ये होता है कि खुद से सिलेक्ट करना, खुद से चूज करना, और खुद और उसको अपनी लर्निंग को प्रोसीड करना, अपनी लर्निंग का मेथड यूज करना, अपने लिए वे फाइंड
कितने मिनट हो गए? ये क्या है? ये क्या टाइम है? 1 घंटा 34 मिनट। लेक्चर नहीं तो मैं तो पूरे 4 बजे बैठी हूँ। हैं? ये कैसे? कितने घंटे का था आपका? 2 घंटे का। 3 बजे पूरे बैठी हूँ। हो गया होगा घाटा वाटा? हैं? हो गया होगा कोई घाटा वाटा? नहीं नहीं, पूछो उससे। हैं? टाइम सही नहीं आ रहा। हाँ, मेरा इस पे हो सकता है टाइम का फर्क है वैसे। तो मैं अभी एंड नहीं करूँ ना, पूरे 4-5 बजे करूँ? ठीक है। हाँ देखो, मेरे लैपटॉप का और मेरे मोबाइल का सेम टाइम है, 53 इधर 53 इधर। खुदा तेरा शुक्र हो। और लेफ्ट उनको ब्रेक मिली और सारे लेफ्ट हो गए। पहले मैसेज कर दो, इससे पहले मैं भूल जाऊं। Hello, dear student. I would like to intimate you that the commencement of the classes from 1st June. अच्छा देखना सुनो, फैसल. Hello, dear student. I would like to intimate you about the commencement of the classes from the 1st June. Delay? नहीं नहीं, क्या बताऊंगी इनको? इसने कहा कि फर्स्ट के बाद बताएंगे, फर्स्ट को इन्फॉर्म करेंगे। नई क्लासेस का जो आगाज करना ना, मैं फर्स्ट से करना है ना। तो वही कह रही ना कि मैं बताया कि मतलब इट इज डिले एंड आई विल क्या करें, अपडेट लेटर। हम्म हम्म अच्छा, hello dear student, I would like to intimate you about the commencement of the classes from the 1st June is postponed.
अच्छा, but the first June will be updated after the री इन्फॉर्म के लिए क्या टर्म यूज होता है? री इन्फॉर्म कर, एक तो इन्फॉर्म करना, री इन्फॉर्म के लिए है रेक्टिफाई। अच्छा, मैं इसके रेक्टिफाई का मतलब भी देखूं। रेक्टिफाई ये होता है कि ऑर्डर जब आएंगे आप उसको चेक करेंगे और फिर आप उनको इन्फॉर्म करेंगे।